चलिए सीधा रुक करेंगे दिल्ली का। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। लाइव दिल्ली से। promise that we will keep the election period short. So, in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So, this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Katua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित है, महफूज है और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से।
मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है in पूछना। the blue shirt, I'll answer. second last row. हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond? एक और Yeah. Please give the person in the last. उधर चले जाइए. This side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. और जल्दी चले जाइए आप प्लीज। हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। तो खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा है कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सके, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, irrespective of the timing of the transfer. ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुआ है। We'll be absolutely clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं। तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण जो है 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरा चरण जो है 1 अक्टूबर को होगा। तो वहीं हरियाणा में
जो चुनाव है 1 अक्टूबर को संपन्न कराए जाएंगे और दोनों राज्यों के जो है रिजल्ट जो है 4 अक्टूबर को आएंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख का ऐलान जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लंबे समय से जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आखिर कैसे देखते हैं इन चुनावों को? देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने 10 साल का जिक्र किया, लेकिन 10 साल पहले जब चुनाव हुए तो लगभग 4 साल सरकार रही थी बीजेपी के गठबंधन ने। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहे थे और उनके निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, वो मुख्यमंत्री रही। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था और जब 370 वहाँ से हटाई गई थी, तब से जब लद्दाख का इलाका अलग कर दिया गया था और ये इस इलाके को यहाँ पर गवर्नर शासन चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सितंबर के पहले यहाँ चुनाव करा लिए जाएं। हालांकि आज जो तारीखों का ऐलान हो गया 1 अक्टूबर को, 25 सितंबर से चालू हो जाएगा और 3 चरणों में चुनाव होना। 90 सीटें हैं यहाँ और इस बार जो परिसीमन हुआ उसमें जम्मू रीजन की जो सीटें हैं वो बढ़ाकर 46 कर दी गई है। कश्मीर रीजन में सीटें कम हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जम्मू रीजन में हमेशा बीजेपी बढ़त में रही और बीजेपी की उम्मीद कोशिश रहेगी कि जम्मू रीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि पिछली बार भी जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने, लगभग 20% उनको वोट शेयर मिला था और सर्वाधिक सीटें उनको जम्मू रीजन में मिली थी। तो इस बार भी बीजेपी की उम्मीद होगी कि वो अपने दम पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ पर हासिल करने का प्रयास करे, क्योंकि जो घाटी जम्मू कश्मीर के हालात हैं वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें और पीडीपी की बात कर लें, इनके अलावा कांग्रेस की बात कर लें, तो ये तीनों दल ऐसे हैं, पीडीपी और एनसी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बीजेपी के साथ वो गठबंधन में रहें, केंद्र में भी रहें और राज्य सरकार में पीडीपी के साथ रहें। लेकिन अभी की जो परिस्थितियाँ वो उससे लग रहा है कि ये तीनों दल हो सकता है एक साथ चुनाव लड़ें। तो बीजेपी के सामने संकट ये रहेगा, अगर उसको सरकार बनानी है तो उसको नए सहयोगी ढूंढना पड़ेंगे और ऐसे जो 10, 5, 15 सीटें तक हासिल कर पाएँ। ये बड़ा चैलेंज रहेगा और सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा शांतिपूर्ण चुनाव कराना, क्योंकि अभी जो हालात हैं कि कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, लेकिन अब वो आतंक का केंद्र अब जम्मू रीजन में शिफ्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं डोडा की बात कर लें, किश्तवाड़ की, राजौरी की, जम्मू रीजन की, वहाँ लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सेना से मुठभेड़ लगातार चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दशक में हमने देखा है कि विधानसभा लोकसभा में 8-10% से ज़्यादा वोटिंग कभी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस बार लोकसभा में 58% तक वहाँ मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो जो पड़ोसी देश हैं उनकी कोशिश होगी कि इस पूरे माहौल को बिगाड़े और ये संदेश देने का प्रयास करें कि धारा 370 हटाने के बाद जो केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर नकेल कसी है, लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा जागा है, तो आतंकी घटना करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, 19 तारीख को यह यात्रा खत्म हो जाएगी, 20, 21, 22 तक वहाँ के श्रद्धालु निकल जाएंगे जो जम्मू तक शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद फौज का डिप्लॉयमेंट करना, इलाके को सील करना और शांतिपूर्ण मतदान, और जो वोटर हैं वो डरे धमके ना और जो उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा करना, ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की और चुनाव आयोग की पहली प्रायोरिटी होगी। जहाँ तक हरियाणा की बात है, 2 बार से बीजेपी की सरकार है, पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे और इस बार लोकसभा चुनाव के पहले उनको वहाँ से हटा दिया गया था, नायब सिंह सैनी को बनाया गया था मुख्यमंत्री और खट्टर को केंद्र में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया। करनाल सीट से वो चुनाव 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि किसान आंदोलन को लेकर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, कहा जा रहा है कि किसान बीजेपी की केंद्र सरकार से नाराज है और राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी हमने इसका असर देखने को मिला था कि बीजेपी को 5 लगभग सीटें वहाँ गंवाना पड़ी थी 10 में से, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 10 की 10 सीटें जीती थी। तो नायब सिंह सैनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सरकार को बरकरार रखें कैसे भी, ताकि तीसरी बार बीजेपी वहाँ सत्ता हासिल कर सके। दूसरी ओर कांग्रेस बड़ी उत्साहित है इसको लेकर कि लोकसभा में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो उसको फिर से दोहरा पाएँ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने पंजाब हरियाणा में काफ़ी फोकस किया था, पंजाब में सरकार बना ली, हरियाणा में उनकी पत्नी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाद से फिर से जेल में है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में कैंपेन कर रही है
और लोकसभा चुनाव के बाद जो दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि दिल्ली में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के साथ वो हरियाणा में भी अकेले वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कितनी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बीजेपी का प्रयास यही रहेगा कि कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़े ताकि उनकी संभावना बढ़े, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर रह गई थी। 41 सीटें मिली थी बाद में, लेकिन जेजेपी के साथ जिसको 10 सीटें मिली थी उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया गया था, उसके साथ वो गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। और लोकसभा चुनाव को पहले जेजेपी ने उनसे जो गठबंधन है वो तोड़ लिया था, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि चूंकि नियम यह है कि जब आप विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं उसके 6 महीने तक अगला अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ आ नहीं सकता। तो नायब सिंह सैनी जब बने थे उसके बाद कांग्रेस की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। नायब सिंह सैनी सरकार ने विश्वास मत खो दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चूंकि चुनावों का ऐलान हो गया, अब ये सबसे बड़ी दिलचस्पी लोगों की इस बात में भी थी कि क्या झारखंड और महाराष्ट्र के लिए भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि चुनाव हम देख चुके हैं, हरियाणा के दौरे कर चुका था, जम्मू कश्मीर के, लेकिन वो महाराष्ट्र नहीं गया था, झारखंड नहीं गया था, क्योंकि इसी नवंबर में 3 नवंबर को हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, वो 26 नवंबर को महाराष्ट्र का हो रहा है, जनवरी के महीने में झारखंड का। तो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ आगे पीछे एडजस्टमेंट करके चुनाव आयोग इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा सकता है, लेकिन फिलहाल 2 ही राज्यों का चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनडीए ने जिस प्रकार से उनको टक्कर दी लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी चाहेगी कि कम से कम हरियाणा में उसका गढ़ बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर में उसकी जो सीटें थी पिछली बार 25 से ज़्यादा, उसकी संख्या में इजाफा हो। मनोज जी, एक शॉर्ट में सवाल जानना चाहूंगा, जवाब भी शॉर्ट में चाहूंगा, समय का चूंकि अभाव है। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, आपने पीडीपी की बात की, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की बात की, आपने कांग्रेस के गठबंधन की बात की कि इन तीनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 2 नए दलों का साथ मिला था, चाहे हम बात करें पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, तो ये दोनों दल जो है एनडीए के साथ बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो क्या ये पलड़ा भारी हो जाएगा वहां पर यूपीए के और एनडीए के मुकाबले में? देखिए, कहना जल्दबाजी होगा अभी, क्योंकि आप देखिए जिन उम्मीदवारों का घाटी में तो एक भी उम्मीदवार उतारा नहीं था, बीजेपी ने समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक अलगाववादी जेल से जीत गए थे और जो बीजेपी समर्थक थे उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग स्थानीय स्तर पर कितने वोट जुटाते हैं और जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वो कुछ सीटें ले आए कांग्रेस का नुकसान पहुंचा सकती है, तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है फायदेमंद होगा। चलिए मनोज जी, अब देखना होगा कि नतीजे किस तरीके के आएंगे। जो रुझान हम और आप लगा रहा है, चुनाव लगा रहा है, वो देखना होगा कि कितने सच में तब्दील होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी के साथ इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए आपका। तो बता दें, चुनाव आयोग ने जो है जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। पहला चरण जो है 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण का चुनाव जो है 25 सितंबर को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। तो हरियाणा में एक ही तारीख यानी 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा। तो अब देखना होगा कि 10 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और 370 धारा हटने के बाद यह पहला चुनाव है। जिस तरीके से विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष पर आक्रामक रहा है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और यह चुनाव होने के बाद अब यह तय होगा कि 370 हटने के बाद वहां की जनता कितनी खुश है या फिर कितनी नाराज है। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से बात मनोज वर्मा जी ने कही है कि अलगाववादी तमाम संगठन है जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो इन चुनावों को जो है कांग्रेस के पक्ष में, स्थानीय पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है वहां पर जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी अलगाववादी नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी। तो हो सकता है कि वो चुनाव को इफेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन देखना होगा कि जहां पर कांग्रेस, पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का गठबंधन हो सकता है, तो वहीं जो बीजेपी के साथ भी 2 नए दल आ सकते हैं।